Hello Betaji, I hope all of you are quite well, taking care of yourself and your family members also. Okay, as you are familiar about the present situation under COVID-19, okay, India is suffering so much. So it's our responsibility. We should create awareness our near and dear and neighborhood also, and take care of ourselves and our family members also. So you are familiar, moving towards our today's topic, you are familiar that we were discussing about the French Revolution. I have uploaded the 4 video on French Revolution. Today is the final and 5th video on the French Revolution, and it's the concluding. Okay, so let's move. We have discussed about the French Revolution, how it began and what were the main causes of French Revolution and changes took place after the French Revolution, how the National Assembly formed a new constitution, came into existence, and according to new constitution the monarchy, Louis XVI gave up his power, but under conspiracy with other neighboring nations or emperors, the Louis XVI was executed, and same fate with his family member and his queen also. Afterwards, we have discussed about the Jacobean Club, Robespierre, Reign of Terror, Convention, and then Directory, each and everything we have discussed. And then how Napoleon Bonaparte came into power, okay, under what circumstances. Each and everything we have discussed in detail, and you can watch my videos. If you are getting any problem, check the playlist of my channel. You will find each and every video from my playlist also. Okay, so moving towards today's topic. Today we will discuss about the women in French Revolution. Okay, women played very important part in French Revolution. Not in French Revolution, but before also, women were playing very important role in French society. They worked very hard from day to night. In India, you can see similar things were happening. In Europe also, when the women, they were looking after their children, their home, domestic chores, and outside work also. So many responsibility on their shoulder. When revolution began, men were on the, you can say, they were fighting against the monarchy, and they were actively participating in the revolution, and behind them women were looking after the children and homes, other domestic work. They were, but so many, after so many struggle by the women, still women were the sufferer. They got nothing in the after the revolution also. Earlier in the French society, women were not given rights. Only the women from the royal family, noble family, and the church or clergy, high class, you can say, they have the authority or the right to go to the school, convent school. And low class, third estate, your commoner, they had no right. Women had no right for the education or schooling. Moreover, in French society, women were not given to get married according to on his own wishes and choice. अपनी मर्जी से वो शादी नहीं कर सकती थी, उनको अपने फादर की मर्जी से, और प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं था. So many women were not given the training for their work. Their work was also, their labor was also not recognized. They were getting less wages. So many things. Okay, हमारे इंडिया में तो अभी भी है, but European nation में now women are getting quite respectable place, and their work are also dignified and equal status. But in India also, we are talking about the women empowerment, the total mental mindset, you can say, we can't change. Okay, so moving towards today's topic, I have discussed women जो थी रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है. विमेंस को राइट नहीं मिले हुए थे एज
comparatively to the men, they were not getting the equal right as men were getting. They have no right to educate herself. Okay, अपने आप को वो अगर वो पढ़ना चाहती है तो right to education नहीं था. They had no right to marry according to her own choice. अपनी मर्जी से उनको मैरिज करने का राइट नहीं था. तो विमेन राइट्स तो थे नहीं, हमने डिस्कस कर लिया. बट जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई उसमें बट विमेन्स ने बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है. जैसे मेन ने बहुत से पॉलिटिकल क्लब्स बनाए हैं, डिस्कशन डिबेट. विमेन्स वर आल्सो वेरी intelligent. They also established so many formed political clubs और उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स भी प्रिंट किए हैं जहाँ पे वो अपने व्यूज और एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द रेवोल्यूशन. पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर, और जो सबसे फेमस और पॉपुलर जैसे जैकोबियन क्लब मेंस का था, ठीक है. इसी तरह से विमेन का सबसे पॉपुलर और फेमस क्लब जो था वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिपब्लिकन विमेन. ये विमेन का फेमस ओके एंड पॉपुलर पॉलिटिकल क्लब था. इनकी मेन डिमांड, विमेन की मेनली डिमांड यही थी, एंजॉय द इक्वल राइट. उनको इक्वल राइट मिलने चाहिए, द राइट सेम एज द मेन. एज द मेन आर एंजॉयिंग देयर राइट, सो द विमेन शुड आल्सो गिवन द same right as the men are given. Okay, so this was the main demand of the women. So but after revolution there was nothing in hand. जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, फ्रेम हुआ 1791 में, women were quite disappointed with the new constitution framed by the National Assembly in 1791 because National Assembly considered them a passive citizen. No right to vote was given to the women. Okay, below the age of 25, women and those who are not paying tax to the government, they were not given the right to vote. Okay, इनको right to vote नहीं मिला गया, so women were quite disappointed. Okay, उनको passive citizen consider कर लिया गया है. Then earlier जो रॉबस्पियर एक गवर्नमेंट थी, but after this you can say constitution, women were struggling more hard. तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा you can say स्टिकनेस भी लगाएगी, बट women नहीं डरी हैं. उन्होंने स्ट्रगल अपने राइट्स के लिए और ज़्यादा अपने स्ट्रगल को, मूवमेंट्स को और ज़्यादा फास्ट कर दिया. तो रॉबस्पियर गवर्नमेंट ने थोड़े से उनके लिए राइट्स इंट्रोड्यूस किए हैं. ओके, सो ये जो है सो दैट लॉज थोड़े से बनाए सो दैट द लाइव्स ऑफ द विमेन शुड इम्प्रूव. ओके, थोड़ी सी विमेन की लाइफ इम्प्रूव हो जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल विमेन की स्कूलिंग, ऑल फ्रॉम ऑल द क्लासेस विमेन की स्कूलिंग जो थी वो कंपल्सरी कर दी गई है. अर्लियर आई हैव टोल्ड यू द नोबल विमेन फ्रॉम द नोबल क्लास ओके have the right to get educated. Okay, right to education you can say. But अब जो है एक सबसे अच्छी बात हुई, एक तो एजुकेशन सबके लिए कंपल्सरी होगी, सेकेंडली नो फोर्स्ड मैरिज. अब जो है विमेन अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी. एक मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट दोनों का एग्रीड होगा, विमेन को भी मैन को भी, तो उसमें एंटर करेंगे. इफ they are not agreed, whenever okay, जब उनको लगता है कि they are not happy with their married life, they can get divorce, और divorce को legalize कर दिया गया. ओके, ये बड़ा अच्छा एक विमेन के लिए हुआ. फिर जो है divorce was made legal. फिर विमेन को जॉब्स के लिए ट्रेंड किया गया, ट्रेनिंग देनी शुरू की गई है अलग अलग जॉब्स के लिए. अर्लियर they were meant for the only manual work where no training was required. Okay, laundress, dock workers, so many flower picking, बस यही उनके छोटे छोटे फ्लोरिस्ट का काम, ये छोटे छोटे काम तो जहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत होती थी. Then next है struggle, but women जो है they were actively struggling for their political rights. Okay, during the reign of terror also. Reign of terror we are familiar, 1793
3 to 1794 तक रहा है रॉबस्पियर की गवर्नमेंट में। इस टाइम पे काफ़ी विमेन को भी एग्जीक्यूट किया गया है। विमेन की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनको बैन इलीगल डिक्लेयर किया है। रॉबस्पियर की गवर्नमेंट ने बहुत से बंद करवा दी है। क्लोजर विमेन्स क्लब को बैन कर दिया गया, जितनी भी विमेन की पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उन सबको, और सेवरल विमेन्स वर आल्सो एग्जीक्यूटेड। ठीक है, गला काट दिया, उनको भी फांसी लटका दिया गया। विमेन को बहुत ज्यादा रेन ऑफ टेरर अंत था, बट विमेन्स की मूवमेंट जो है वो चलती रही है थ्रू आउट द, ठीक है, वो डरी नहीं है, हिम्मत से लड़ती नहीं है, झगड़ती, you can say actively participating और movement होते रहे हैं all over the world also for the women right and for the equal right also. Okay, so women की जितनी भी मेहनत थी at last फ्रांस में सक्सेसफुल रही है। जब फाइनली women को right to vote मिला है 1946 में। okay, ये women का स्ट्रगल, women मूवमेंट जो उनकी स्टिफ यू कैन से हार्ड लाइफ थी, हार्ड स्ट्रगल थे, सक्सेसफुल फाइनली हुए हैं 1946 में, जब विमेन को राइट टू वोट मिला है। देन स्लेवरी, गुलामी एक बड़ा था फ्रांस में नहीं, ऑल द इम्पीरियलिस्ट पावर्स में था। बट वी आर डिस्कसिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अबाउट द फ्रांस, वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रांस ओनली। अबॉलिश हुई है स्लेवरी, गुलामी। ओके, यहाँ पे this thing you must come to know about this कि जितने भी इम्पेरियलिस्ट पावर थी, रिच कंट्रीज आप मान लो, वो गरीब कंट्रीज को गुलाम बनाया। जैसे हमारे इंडिया को, वी वर अंडर ब्रिटिश रूल फॉर मोर देन 200 years। ओके, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया है, तो हमारे से ये लोगों को गुलाम बना के ले जाते थे, इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता है। इसी तरह से अफ्रीकन नेशन से और लैटिन अमेरिका से, कैरिबियन से, इन सब से जो पुअर कॉन्टिनेंट थे, ठीक है, वहां से बहुत से लोगों को गुलाम बना के ले जाया जाता था और अपने टबैको, टी, कॉफी, शुगर, ये सारी प्लांटेशन में, क्योंकि लेबर रिक्वायर्ड होते थे इनको, लेबर्स को, बट लेबर की कंडीशन इतनी पुअर होती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको शिप्स में भर भर के कि बैठने की भी जगह नहीं है, खड़े होकर बेचारे टाइटली पैक्ड एंड शिप, और उनको 3-4 महीने की समुद्री यात्रा ऐसे ही करवाई जाती थी। बस वो जिंदा रहे ऐसी कंडीशन, और एक तरह का खाना मिलता था, और उनको उनके नाम से नहीं उनके नंबर से जाना जाता था नाम। तो इतनी पुअर कंडीशन थी स्लेव्स की, बट ये स्लेव ट्रेड चलता रहा क्योंकि इंपीरियलिस्ट पावर, रिच कंट्री जो थे अपने बेनिफिट देखते थे, और वहां के मर्चेंट, ट्रेडर्स। ओके, सो ये जो था स्लेवरी कैसे चल रही थी और किस तरह से अबॉलिश हुई, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। जैकोबियन रिजीम ने कोशिश की है कि स्लेवरी को बैन किया जाए, अबॉलिश किया जाए फ्रांस में और फ्रेंच कॉलोनीज में ऑल्सो। जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान तो साथ ही था। सिमिलरली फ्रांस की भी अफ्रीका में, इंडिया को भी कोशिश की है फ्रांस ने कॉलोनी बनाने की, बट तो इसी तरह से अफ्रीका में और बाकी कॉन्टिनेंट्स में फ्रांस की अपनी कॉलोनी थी, वहां पे भी गुलामी जो है अबॉलिश, स्लेवरी को अबॉलिश करने की कोशिश की है। ओके, जैकोबियन ने। सो ट्रेड होता था ट्रायंगुलर स्लेव्स का, वहां से यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका से, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से ले आते थे गुलाम, और यूरोप में आके बेचे जाते थे। और इस वजह से फ्रांस की 2 पोर्ट्स जो थी 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में, बॉर्डर्स और नैंस, ये जो थी अफ्रीका कोस्ट के पास पड़ती थी, और यहाँ पे आके गुलाम बेचे जाते थे। ओके, वहां से लाते थे ट्रेडर और यहाँ पे आके, और ये इस वजह से ये पोर्ट्स इतनी ज्यादा रिच हो गई। जो ट्रेडर, जो व्यापारी खरीदते थे, रिच मर्चेंट जो थे, दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ द अबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी, क्योंकि उनका फायदा हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लेबर मिल रही है। ओके, एक इंसानी जान की कीमत देखिए क्या थी, किस तरह से जुल्म किए हैं
जो रिच कंट्री थे, इंपीरियलिस्ट पावर्स ने। ओके, सो ये जो थी एक्सप्लॉयटेशन लेबर का होता है। नेशनल असेंबली ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। ऑल्दो नेशनल असेंबली जो है बड़ा की मोनार्क, बड़ा डेस्पोटिज्म है, बड़ा है ना, यू कैन से राइट्स के लिए स्ट्रगल करें। राइट तो स्लेवरी के राइट्स का भी सोचो ना, आप अपने राइट्स का सोचो। बट नेशनल असेंबली ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, ना कुछ किया, उसको एज इट इज ही रहने दिया जो लुई 16 के टाइम पे स्लेवरी चल रही थी। बट कन्वेंशन ने जो है 1794 में लॉ लेके आई है। 1794, रिमेम्बर, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कि फर्स्ट टाइम स्लेवरी को फ्री किया, फ्री ऑल द स्लेव्स, ठीक है, जितने भी गुलाम हैं उनको फ्री किया जाए, आजाद किया जाए। फर्स्ट टाइम ये हुआ है। बट नेपोलियन आया है, उसने फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया है स्लेवरी को, दोबारा ले आया, क्योंकि बहुत फायदा हो रहा था फ्रांस को इसका। रिच मर्चेंट्स को खुश करने के लिए अपना भी व्यापार पूरी यू कैन से फैला रहा था वो। ओके, यूनिफॉर्म वो कोड लेके आया, एक जैसे लॉ लेके आया, नेपोलियन वेटेज के सिस्टम लेके आया, डेसिमल सिस्टम लेके आया, सब कुछ। बट ये काम उसने गलत किया कि स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस किया है उसने, और स्लेवरी जो है फाइनली अबॉलिश्ड होगी पूरी तरह से 1848 में, फ्रांस में ही नहीं, इन ऑल द फ्रेंच कॉलोनीज ऑल्सो। जो गरीब कंट्रीज के ऊपर कब्जा किया होता था, रिच कंट्री उसको अपनी कॉलोनी कहते थे। ठीक है बेटा, अब आ जाइए जी रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के एवरीडे लाइफ पे क्या असर हुआ? रेवोल्यूशन तो होगी, बट कॉमन पीपल की लाइफ कैसे चेंज हुई? ये तो अंडरस्टूड है। फंडामेंटल राइट्स सब लोग एंजॉय करने लगे, कुछ एक नेचुरल राइट्स उनको मिले। नेचुरल मीन्स हमें बोलने का राइट मिला है, जुबान दी है। ओके, वी हैव द राइट टू एक्सप्रेस आवर थॉट, टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन। राइट टू लाइफ जिंदगी ऊपर लेने दी है तो वही लेगा, किसी और की नहीं है। ठीक है, सो ये कुछ एक नेचुरल राइट कंसिडर कर दिए गए, और इक्वालिटी, लिबर्टी, ये जस्टिस एवरीडे लाइफ का पार्ट बन गया। अब ये नहीं है कि फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है, अब इक्वालिटी, इक्वल है। ओके, नॉबल्स या प्रिंस या रॉयल फैमिली या क्लर्जी या चर्च को हायर लेवल मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं। नो, इक्वालिटी, लिबर्टी मीन्स आप आजाद, और जस्टिस मीन्स न्याय, सबको इक्वल मिलेगा। कोई राजा ओके अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं सुना सकता। एक ये बड़ी अच्छी बात हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन के आते ही कि सेंसरशिप, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप हट गई। पहले था कोई भी राजा के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं लिख सकता, अब जो है ओपनली एक्सप्रेस देयर व्यूज। तो इस खुशी में इतने न्यूज़पेपर, इतने पैम्फलेट, इतनी बुक्स ज्यादा प्रिंट होनी शुरू होगी, लोगों ने अपने व्यूज, अपने आइडियाज इतने फ्रीली फ्रैंकली एक्सप्रेस करने शुरू कर दिए हैं कि प्रिंटिंग की शॉर्टेज हो गई है, लोग इतना पढ़ने को उतावले हैं। ठीक है, दे आर क्वाइट एक्साइटेड टू रीड द बुक्स जो फिलोसफर ने कॉमन पीपल के व्यूज की थी, बट प्रिंटिंग इतनी फास्ट नहीं हो रही थी, इसलिए लार्ज स्केल पे बुक्स पब्लिश नहीं हो रही थी, ये शॉर्टेज थी। अदरवाइज पीपल वर फ्रीली एंजॉइंग द अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। अब जो है ओपनली ये लिख सकते हैं व्यूज ऑफ नेचुरल राइट्स। आई हैव डिस्कस्ड, लोगों को मिल गया। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकला है फ्रेंच रेवोल्यूशन का? फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक तो ये हुआ है कि जो आइडियाज थे फंडामेंटल राइट्स के, फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि जो आइडियल्स जो थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हुए। सारे यूरोपियन में एक चिंगारी सी, ओके, कि मोनार्क के खिलाफ चली है, डिफरेंट अम्पायर के खिलाफ। और तो और नेपोलियन बोनापार्ट ने एक ये अपने ऊपर वी कैन से ऑन हिज शोल्डर ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये आइडियल्स जो हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के पूरी यूरोप में फैलाएगा, और वहां पे भी रेवोल्यूशन लेके आएगा, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, मॉडर्नाइजर इसीलिए कहा जाता है नेपोलियन को, बिकॉज ही इंट्रोड्यूस सेवरल, ओके, हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर, क्योंकि उसने बहुत से लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं जो डिफरेंट टाइप का वेटेज
ठीक है, वेट का नापने का तोलने का तरीका था वो अलग किया है, और सेम किया है, सॉरी, यूनिफॉर्म लॉ लेके आया है, डेसिमल सिस्टम लेके आया है, और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से रिलैक्स लेके आया है। सो मेनी थिंग्स उसने इंट्रोड्यूस की है फाइनली। बट नेपोलियन बोनापार्ट भी अब स्लोली स्टैडली क्या होना शुरू हो गया, लोग फेडअप हो गए कि नेपोलियन का यही अब है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेड करे, ज्यादा से ज्यादा कंट्रियों को, जगह को जीते, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स को वहां पे वो किंग बना रहा था, वही किंग का रूल आ रहा था। और कुछ एक जो थे कॉमन पीपल की वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे थे, तो कॉमन पीपल भी फेडअप हो गए थे। ऊपर से एनिमी, स्पेशली इंग्लैंड, ब्रिटेन जो था वो बहुत बड़ा एनिमी था फ्रांस का, तो वो चाहता था नेपोलियन बोनापार्ट को किसी तरह से हराया जाए। सो फाइनली जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है डिफीटेड एट द वाटरलू इन 1815। ये प्रोवर्ब भी, मुहावरा जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, प्रोवर्ब भी बहुत है, मैथमेटिक्स इज अ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू फॉर मी, ठीक है, क्योंकि हर जगह से जीतता आ रहा था, एक जगह पे आके फाइनली वो हार गया। वाटरलू वो जगह थी, 1815 था, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। बट गुड थिंग ये रही कि जो आइडियल्स थे, नेपोलियन बोनापार्ट की डिफीट के बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया। दैट इज द लॉन्ग स्टोरी, अदर स्टोरी आई विल डिस्कस इन अदर वीडियो। सो बट नेपोलियन बोनापार्ट के जाने के बाद भी जो आइडियल्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, वो एनश्राइन करते रहे, फ्लरिश करते रहे, सेपरेट होते रहे, और लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, खास करके ये कि मोनार्क खत्म हो और किंग का अंपायर का रूल खत्म हो और डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, ये जो थे बहुत ज्यादा, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट थे फ्रेंच रेवोल्यूशन की लेगेसी के, ओके। और ये जो है बहुत ज्यादा पूरे के पूरे यूरोप में इन्होंने इम्पैक्ट डाला है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम यूरोप में फ्लरिश करने का पूरा क्रेडिट फ्रेंच रेवोल्यूशन को जाता है। नॉट ओनली फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन इंडिया ऑल्सो सेवरल हमारे सोशल रिफॉर्मर्स जो थे, स्पेशली राजा राम मोहन राय, ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस वगैरह ये आइडियाज जो थे वो इंडिया में भी फ्लरिश करने का पूरा कंट्रीब्यूट किया है, तो इंस्पायर हुए ही हैं। So that's all for today. With this we come to the end of the chapter, the French Revolution. Okay, I will discuss the important question from the French Revolution in other video. Okay, but before leaving, again I want to remind you, if you are getting any problem, send me your problem in comment section. But don't forget to subscribe, like and share my channel to all. That's all from Aradhna ma'am.